Okay, so I think we can carry on. Shiva, I think you're on mute. Yeah. Okay. Thank you. So, guys, can you see my screen? I hope my screen is visible to everyone, right? Yes, no, something. Yes. Okay, fine. Thank you. Okay, so let me introduce myself. So my name is Shivanand, and I am working in corporate sector around 10 years or 11 years of around. So I am working as a CRM manager in Karcher Training System Private Limited as a CRM manager. So I'm taking care of the product management as a data analysis, and also I'm taking care of three types of CRM like Microsoft Dynamic 365 Infor CRM, and there is one more SAP ERP system. So this is about myself. And so let's begin with this our Excel training classes. So आई एम कवरिंग, जैसे देव ने बहुत चीजें आप लोगों को बेसिक्स चीजें बताई हैं, वो भी मैं कवर करूंगा बीच बीच में. बट लेट्स स्टार्ट विद द लाइक वी हैव सम टॉपिक्स हियर. So Excel basics formula, I start with Excel basics formula first. So before I start with the formula, I have something for you. Like, let's play with the Excel first. So if I go to the home tab, you can see that we have a lots of functions, lots and lots of functions in Excel. So we have a age calculation, we have a ABS, we have a AND, we have a auto sum, we have a average, we have a binary to decimal. ठीक है. ब्रैकेट्स कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, सेलिंग कैसे यूज करते हैं, कब यूज करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग के पास पूरा का पूरा चार्ट पड़ा हुआ है. आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंक्शंस. यू कैन सी दैट कि ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गूगल शीट में मैंने बनाया हुआ है, राइट. तो जैसे कि देव ने बताया कि आप लोगों को कि हम लोग के पास लूकर स्टूडियो है, गूगल शीट्स है, ठीक है. तो ये हमारा पूरा एडवांस लेवल का सारा चीज आता है. बट आपका जो बेसिक्स है वो एक्सेल क्लियर होना चाहिए, राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सेल. सो दिस इज माय एक्सेल शीट. ओके, so you know how to open the Excel sheet. So this is my home tab. You can see that I have a blank workbook. So you can open the blank workbook from here, right. यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या आपने जो रिसेंट फाइल जो भी आपने ओपन किया होगा या जो भी आपने डाउनलोड किया होगा वो आपको दिखेगा यहाँ से. इफ यू वांट टू सी दैट कि आपने जो जो रिसेंट फाइल ओपन किए वो यहाँ से भी देख सकते हैं. इफ यू लाइक यू हैव टू क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन दैट. जो भी रिसेंट आपने फाइल ओपन किया होगा आपको सारे के सारे यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं. ओके, एनी क्वेश्चन ऑन दिस पेज, राइट. सबको क्लियर है यहाँ तक कि हम रिसेंट पेज कैसे ओपन करते हैं या हम ब्लैंक वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं, वो सारा चीज है. Now let's open the workbook. So you can see that this is my workbook. Okay, so on this workbook you can see that we have, like, I'm just giving you the basic idea about the worksheet. So we have how many columns, we have how many rows. So for example, if I go down, you can see that we have a 10,48,576 of a like rows here. Okay, and how many columns we have except D. So if you want to count except D, so you can count that, but it's lump sum around I am not about the know about the figure, but I will tell you later how we to count that. Now let's begin with this one. So on the top you can see that this is our shortcut toolbar. Okay, so you can see that this is our Access script toolbar. So if you want to see, I want to see a new page, I want to open a new page from here. I don't want to go file and then I have to click on new. You can click on this page. You can create your document directly from here. अगर आप लोगों को शॉर्टकट पता है या शॉर्टकट जैसे जैसे फॉर एग्जांपल फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं. ओके, जैसे मैं ईमेल जाना चाहता हूँ या प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ या जैसे स्पेलिंग ग्रामर्स चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं.
राइट। सो मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है, सो आई एम नॉट शोइंग यू एनीथिंग हियर। सो आई एम जस्ट प्लेइंग विद दिस फर्स्ट वन कि आपको कहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा, हमारे टैब्स क्या क्या होते हैं, हमारे होम टैब होता है, होम टैब्स के अंदर यू कैन सी दैट वी हैव अ लॉट्स ऑफ अ कमांड। Okay, if I go to the insert tab, you can insert a pivot table, you can insert a recommendations pivot charts, tables, illustrations. Okay, if you want to add ins, so you can add ins here also, like for example chat gpt अगर आप add करना चाहते हो तो यहाँ से भी add कर सकते हैं, but I will show you later। और यहाँ पे हमारे पास कुछ recommendations chart automatically बने हुए आते हैं, यहाँ से आप pivot chart बना सकते हैं, insert column chart, insert hierarchy charts, you can insert and like lots of things. You can add a slicer timeline also. I will show you something like it will like we do a dynamically, हम लोग dynamically जब data changes करेंगे तो यहाँ से आपको changes दिखेंगे। Now go to the page layout। तो पेज लेआउट पे आपको जैसा बैकग्राउंड चाहिए, आपको पेज मार्जिन दिखाना है, वो सारी चीज यहाँ से दिखेगा। Now go to the formula bar। So this is our main topic that today we want to learn about that, कि हमें functions कैसे use करना है, कहाँ use करना है। ठीक है, तो ये हमारे basics है। This is about if I go to the auto sum, so you can see that we have a sum, we have an average, we have a count, we have a maximum, we have a minimum. If you want to add a more function, just click on that, you can add a more function also। Okay, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक चीज से, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आई हैव अ लाइक डेटा हियर, फॉर एग्जांपल आई हैव अ प्रोडक्ट description, okay, and I have a quantity here and I have a gross sales here। now ये मेरे पास एक डेटा है, राइट। पहले कोशिश करिएगा इसको समझने की कि मैं आप लोगों से सवाल क्या पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल आई हैव सम प्रोडक्ट, okay। now here I am just trying to put the product here, like I have a tube light, okay, I have a something here, bulb, refrigerator, okay, I have this quantity here। now you can see that I have a quantity columns here। now I have a gross sales, so randomly I'm just putting the number here। now like that I have so many of data here, for example I'm just copying this and pasting here, just copying this one, going down, copy, control C, copy, and then paste, and then paste, and then paste। so now I have a data here, so you can see that what I am missing here, how many data I have right now, how many data I have right now, can you just count it right now? कोई काउंट करके मुझे बता सकता है कि कितना डेटा है मेरे पास? 9 डेटा है? No, actually I have around how many count? Can you just tell me others? कोई दूसरा बता सकता है कितना डेटा है मेरे पास यहाँ पे? देखो ये हम सबके लिए मुश्किल है क्योंकि आप लोगों को छोटा डेटा दिख रहा है। If I'm just copying this one and pasting here, now how many data I have right now? क्या मैं काउंट कर सकता हूँ? Anyone? If I count raw, sir, so I count data, but manually is not possible. This is not possible. Yes, sir. Yes, sir. Manually count is not possible, sir. Right. So manually count करना मतलब कि हमारे पास अगर पूरा डेटा बड़ा है तो हमें काउंट करना बहुत ही प्रॉब्लम है। ठीक है, सर। हमारे पास क्या क्या तरीका हो सकता है काउंट करने का? या तो हम एक काम कर सकते हैं, इनका सीरियल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, बट मैं एक एक करके लिखूंगा तो नहीं सर। राइट। तो आपके पास क्या होता है कि हमारे पास एक सीरियल नंबर करके कॉलम होता है। जब भी आप डेटा कोई बनाते हो तो एक सीरियल नंबर डिफाइन करते हो, ओके, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका डेटा सीरीज कितना है या डेटा काउंट कितना है। तो मेरे पास देखो कि जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैंने 1 यहाँ पे टाइप किया। नाउ आई एम जस्ट टाइपिंग 2 हियर। अब दोनों चीजों को एक साथ सेलेक्ट करना है। यू नीड टू सेलेक्ट बोथ वन एंड देन यू हैव टू जस्ट गो टू द डॉट ऑप्शन
and you have to drag this. But मैं कहाँ तक drag करूंगा? जहां तक मेरा data है. So you can see that how many data I have right now? I have 24 data, right? I have how many product descriptions right now? I have 24. Okay, but this is very simple for me. ये आप लोगों के लिए भी simple है कि मैंने 1 2 लिखा और drag कर दिया. Sir, if I select all data, If you select all data, so I know that how many data is my page. Can this possible, sir? how many days? How many data is my page? If Okay, I how select many? all data. You can select all data from here. So you can see that if I click on all corner, right? If I click on corner, so you can see that you got the count here, right? How many data I have right now? I have 100 counts. Okay, and what is the sum? 55,000, like 5,54,204. No, sir. No, sir. Sorry, sir. Sorry. This is not possible, sir. Okay, so what I'm just trying to tell you कि अगर हमें कोई डेटा का काउंट निकालना है, कि किसी ने पूछा कि यार ये डेटा मेरे पास है और इसका काउंट बताओ, जस्ट टेल मी दी व्हाट इज द काउंट ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस राइट नाउ. सो आई हैव अ 24, बट राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दिया. बट इसको और भी तरीके होते हैं फॉर्मूला लगाने के. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा सीरियल नंबर लगा के आपको दिखाता हूँ. एक मेरे पास 1 नंबर है, राइट? नाउ आपको पता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेंट में खोल के आप लोगों को एक चीज बताता हूँ. जैसे कि मेरे पास 1 है, ठीक है? 1 में 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है, राइट? और 2 में प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है. एंड देन 3 में हम प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है? 4 आता है. तो 1 जो है ये कांस्टेंट है, दिस इज नॉट चेंजिंग, दिस इज एब्सोल्युटली फ्रीज. ठीक है, ये आप देख रहे हो 1 जो है ये फ्रीज है, राइट? इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा. बट यहाँ पे जो हमारा चेंजेस हो रहा है कि 1 + 1 2 किए तो यहाँ 2 आया, 2 के में प्लस 1 किया तो 3 आया, और 3 यहाँ पे आया, और फिर प्लस 1 किए तो 4 आया. दिस स्टेप इज क्लियर? सबको क्लियर है ये वाला स्टेप्स? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ. हाँ, यस प्लीज गो हेड. अगर किसी को पूछना है यहाँ पे कि ये चीज क्लियर है कि नहीं. Sir, while texting the serial number, I have been Right. executed 1 and 2. I have, when I track it, it's displaying as a 1 1 1 1 1 1 1. Right. Why this is showing you 1 1 1? I'm just telling you. Just give me a second. Let me take the other people's feedback on this. Anyone want to ask question on this? This is clear or not? First, let me know. 1 + 1 is 2. This is, you know that 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, 4 + 1 is 5. सबको क्लियर है? 1 1 में सबको भी प्लस कर रहा हूँ, राइट? बेसिक थिंग है, मतलब मैं आप लोग को बेसिक्स एकदम बता रहा हूँ, एकदम ही बेसिक को, जो कि हर जगह जरूरत पड़ती है. तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इज इक्वल टू किया. whenever you are using Excel, तो इज इक्वल टू जो होता है हमारा एक सिंटैक्स है, ठीक है? कभी भी आप एक्सेल यूज करोगे तो इक्वल्स के बिना आप यूज नहीं कर सकते कोई भी फंक्शन, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? इक्वल तो इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ 1 मैंने प्लस किया, 1 मैंने सिलेक्ट किया, इसमें मैं क्या करता हूँ? 1 प्लस कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या आएगा आंसर? 2. This is clear? 2. Now if I double click on that, you can see that कि मेरे पास जहां तक डेटा था वहां तक 24 काउंट करके ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. अब आप देखोगे इसमें, जब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कंट्रोल और मैं सेमीकोलन दबाता हूँ तो आपके फॉर्मूले यहाँ पे दिख जाते हैं. आपको क्या प्रेस करना होता है? CTRL+
एक ये टिंडल करके एक आता है यहाँ पे, ऐसा घूमता हुआ आपको एस्केप के नीचे दिखेगा। ऐसा दिख रहा है किसी को लैपटॉप में अपने, ये वाला साइन? यस सर। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपके जितने फॉर्मूले होंगे वो पूरा का पूरा आपको दिखा देगा कि क्या आपने यूज किया है। ओके, तो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर कि जो B3 था, तो B3 जो था मेरा, ये सेल रेफरेंस मैंने लिया। यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरे पास B3 आ रहा है, और यहाँ पे जब मैंने 1 पे सिलेक्ट किया, दिस इज माय करंट सेल। सो करंट सेल में यू कैन सी दैट कि इफ आई सेलेक्ट B3 एंड +1 देन 2 आया। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली जब मैंने ड्रैग किया तो यू कैन सी दैट कि B3 को मैंने फ्रीज नहीं किया है। फ्रीज मतलब हमारे पास 3 तरीके के डॉलर्स होते हैं, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा आप लोगों को। एक हमारे पास होता है फ्रीज ऑप्शन। इफ यू प्रेस F4, if I let me just go back to my previous one formula, ये मेरे पास फॉर्मूला था। इफ आई फ्रीज दिस वन, अगर मैं 1 को फ्रीज कर दूं सबके लिए, क्योंकि 1 इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन, ये चेंज नहीं हो रहा, दिस इज एब्सोल्युटली फ्रीज, राइट? यहाँ पे 1 जो है सबके लिए फ्रीज है, यस नो? सबके लिए 1 सबके लिए बराबर है, सब में मैं 1 1 ऐड कर रहा हूं तभी तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ओनली थिंग इज दैट B3 जो सेल है वो चेंज होते जा रहा है, जैसे B3 का आंसर आया या B4 का आंसर आया उसमें प्लस होते जा रहा है। ओके, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? इसके बाद भी मैं एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा। एक और तरीका है इसको सीरीज लाने का तरीका, मैं एक और बताता हूं। जैसे मैंने 1 लिखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, B3 सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, C3 सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्लस अगेन C3 किया। क्यों किया? क्योंकि 1 जो है मुझे प्लस करना है, और 1 जो प्लस करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, नाउ आई हैव टू फ्रीज दिस वन। फ्रीज दिस वन मीन्स दिस इज not going anywhere, absolutely this is not going anywhere and this is freeze for all the cells। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो you can see that I got the 2 number। if I drag this one तो आपको देखो कि मेरे पास सीरीज ऑटोमेटिकली बन के आ गया, राइट? क्लियर है? बेसिक है एकदम, बहुत ही बेसिक, मतलब आप लोगों को मैं इस चीज से बता रहा हूं। अब एक और चीज मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा कि जैसे कि मेरी सीरीज यहाँ पे बन रही है, अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखाता हूँ क्या है। फॉर्मूला देखो, C3 जो है फिक्स्ड है एकदम, C3 फिक्स्ड कर दिया मैंने सेल, ठीक है? दिस इज नॉट मूविंग एनीवेयर, दिस इज एब्सोल्युटली फ्रीज। 1 जो है सबके लिए फ्रीज कर दिया, ओनली द C3, C4, C5, C6 सेल इज चेंजिंग। ओके, Sir, So can मैंने you आप, explain this method once again, sir? yeah sure, let me just go to the paint, just look at my screen, okay? I'm just starting from here. So now I have a, like for example, I just put here 1 number, right? What you will do for the second number? What you will add? If I want to add 1 here, if I want to add 1 plus 1 means that 2, right? If I Yes, sir. add 2 plus 1 means that 3, okay? So the cell is moving, I'm not changing anything here. This cell is only 1 2, now once I got the answer here 2, then this cell will move to 3, and if I add 1 here, now if I add 1, so it means that I got the 4 number here. Okay, so what is constant? Absolutely freeze. Can you just tell me what is the number is freeze here? Can you see what is common here? So 1. 1 is common, so means that I am just adding 1 that is constant, for that is absolutely freeze for all the cell. Only we are moving to the 1 to 2, what I will get the answer, then I'm taking this reference 2 plus 1 3, and then plus 3 and plus 1 4. So that's why I freeze 1 here. Okay, 1 is freeze for all the cells, so that's why, that is the reason that I'm getting the answer. Okay, I'm just taking the reference, so that's why you can see that if I click on that and
if I go to the data, and if you can see that I have something here. I just want to show you something. This is my trace. So this is tracing from this one cell. Now if I click here, you can click on this one. This is tracing from the above cell. Now if I click on this, now if I click on all the cell, so now Control Z, if I drag this one, you can see that if I trace, I just want to trace this one. So you can see that this is tracing from this one. Means that one is coming from here because this is fixed, and only the cell is changing. Okay. So just Okay, try. You have to do the practice actually. Actually, this is not comes in one go. You need to do the practice. Okay. sir. But that what are the symbols being used, sir? Which is C. S symbol is what's the symbol of S? This we called, I think, Tyndall sign, or you can say that. Let me check what is the symbol. So I have to just put here this one, and I have to character, and let's select this one. Let me check what is the character here. One. Oh, I'm just checking the symbol. Just give me a second. Let me show you something more thing. Actually, if I use character, so care is what return the character specify the code number for the character for the set by the computer. So you know that the binary language, right? So let me check. So this is the symbol for one language, and if I drag this one, you can see that I got so many of things here. Now no value is. We just go to the 255 or 300 around, and I think this is Tyndall sign. So maybe you got the yes. Now this is your sign. Control C. If I go to this one, let me just go to this Google. What sign? So it's like substitute natural symbol. I need a language. What symbol is this, right? So this is basically, you can see that I have a symbol sign also. You will get it in your character method also. So I think this is the Tyndall or Infinity. You can say that. Okay. So don't worry about this. You can use that. You have a like sign this one on your like below to your escape button. Okay, so you can use that. Okay, Okay, sir. shall I move to the next one? चले नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट देखते हैं क्या चीजें इंटरेस्टिंग है और चीजें इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग इसके अंदर सीखते हैं. कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बड़े काम की होगी. ठीक है, ये कंपनीज वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए. अगर ये चीज नहीं पता है तो फिर आपका डिफाइन करना डेटा फिर बनाना वो भी मतलब बेकार है. ठीक है, ये छोटी सी चीज है, प्लस माइनस चीजें हैं, तो वो मैं चीजें आप लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ. राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं और एक और चीज हम लोग करते हैं इसके अंदर. चलो ठीक है, मैंने मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर है. Okay, now I want to define here January and February. So you can define, like for example, I want to define here month. तो मंथ डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? किसी को भी आइडिया हो कि मेरे को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, आई हैव लाइक 12 डेटा हियर. सो आप लोगों को पता है ना कैसे हम लोग स्पेस बार, शिफ्ट और स्पेस बार से हमारा जो होता है रो सेलेक्ट होता है, और कंट्रोल और स्पेस बार से हमारा जो होता है कॉलम सिलेक्ट होता है. सबको आइडिया है? देव ने शायद बताया होगा, मैं भी क्लास में था. देव ने आपको सारा शॉर्टकट बताया. मैं आप लोगों को शॉर्टकट फाइल भी भेजूंगा. आपको शॉर्टकट सीखना है तो मैं इसके बाद शॉर्टकट बताने वाला हूँ आपको. सब चीज इकट्ठे यहीं पे अभी के अभी सब चीजें आप देख लोगे शॉर्टकट्स. और आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फाइल खोलने की, ओपन की जरूरत नहीं है. आप यहीं पे सारा चीज देख लोगे 1 मिनट में. राइट,
तो मुझे कोई बताएगा कि मेरे को अगर कोई चीज यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, आई हैव अ 12 days here, I have a 12 month like serial number, so I want to give a January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. तो किसी को आइडिया है कैसे? मेरे पास जनवरी मंथ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सर जैसे वहां पे जनवरी लिखा हुआ है, फिर उसको राइट साइड पे कॉलम पे सेलेक्ट करके जस्ट अगर आप ड्रैग करके नीचे ये वाला लेंगे तो फिर डॉट वो पे जाके, ये वाला डॉट पे नीचे जाके मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च आ जाएगा, राइट? जी जी सर। Okay, this is our first method. Second method. अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं अगर एक और सीरियल नंबर आपको देना है तो उसका भी you can put your mic on mute, so if you want to say, just unmute yourself and then you can say that, right? Okay, बाकी सबसे मैं क्वेश्चन, मतलब सब कोई बोल नहीं रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, किसी को कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, प्लीज फ्री योरसेल्फ एंड यू जस्ट, अगर आप लोग पूछेंगे नहीं क्वेश्चन तो मजा नहीं आएगा इसमें एक्सेल में। किसी का क्वेश्चन है? anybody want to ask questions related to this? किसी का भी क्वेश्चन हो यहाँ पे सीरीज वाला? सीरियल नंबर का सेकंड वाला फार्मूला जो है वो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है। ओके, ठीक है। जो आपने एक जो और second वाला था। सबसे इजी फॉर्मूला बताता हूँ सीरियल नंबर का। एक मेरे पास नंबर है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरे को सीरीज चाहिए, तो मेरे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ऑल्ट EIS, ठीक है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मेरे को सीरियल नंबर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट EIS। नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे को एक कॉलम में एक डेट चाहिए, आई वांट टू स्टेप द वैल्यू, आई वांट टू ऐड 111, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर आ गया। ये भी एक शॉर्टकट फंक्शन है। आप यू वांट टू लर्न कि मेरे पास अगर ये चीजें सीखना है तो आपको क्या प्रेस करना होगा, ऑल्ट प्लस E प्लस I प्लस S. So this is the shortcut function. Let me press here. Now I have just entered here Jan. Now I need the January, February. So let's press Alt EIS. So you can see that. Now let's fill this one, date or weekend or month or year. So you can see this is my series, right? So this is my series chart. You need in a rows or in a column, in a linear type, in a growth wise, in a date wise or autofill. So जैसे for example ये मेरे पास January है, now I need in a month, so you just click on that. बस कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, बट आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। अब जैसे मेरे यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, Alt EIS प्रेस एंड देन I just have to press linear. Linear पे भी काम नहीं कर रहा है। Now you have to press what? यहाँ पे मुझे मंथ ग्रोथ चाहिए यहाँ पे, right? So you can use that one. जैसे for example, if I press here February, so if I press, so you can see that if I press here March, so you can see that this is coming in linear way automatically. Okay, तो ये आप प्रैक्टिस करो, आप घर पे देखो कि ये चीजें हमारी सीरीज वाइज एक ऑप्शन होता है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप प्रेस करेंगे ऑल्ट EIS करके। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है यहाँ पे? मैं बहुत छोटी सी चीज सर, मैं हाँ 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 सर अभी तो क्लियर है, लेकिन ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होगा। मैं आपको दूंगा, मैं ये शीट खुद दूंगा, आपको शेयर करूंगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये आपको शीट मिल जाएगी, आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है, आपको वीडियोस मिल जाएगा। यू कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप विद देव, देव विल प्रोवाइड यू, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू राइट नाउ। एक हमारे पास गूगल शीट होगी, गूगल शीट पे हम सब चीज शेयर कर देंगे, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इज दैट दिस इज द माय, ये तो मेरा पहला मेथड था। अभी मैं एक और चीज यहाँ पे करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई
आप लोगों ने नोट डाउन किया, ऑल्ट EIS से हमारा सीरीज आता है, सीरीज से ऑटो फिल कर सकते हो, चाहे डेट फिल करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट प्रेसिंग हियर कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन से क्या होता है, आपका डेट आता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब ये प्रेस करेंगे, आपका शॉर्टकट फंक्शन है फॉर द डेट एंड फॉर द टाइम व्हाट यू नीड टू डू, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन प्रेस दिस। फॉर द टाइम क्या प्रेस करना है हमें, CTRL प्लस सर एक बार सर डेट से बता दीजिए। शिफ्ट मैं बता रहा हूँ, और प्लस कॉलन, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट है, मुझे डेट चाहिए, तो मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल और कॉलन नंबर, ये वाला साइन, ठीक है। तो मेरे पास डेट आ गया। अब मुझे सीरीज चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और ऑल्ट EIS प्रेस किया, डेट का कॉलम ऑटोमेटिकली, नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास ऑटोमेटिकली डेट सीरीज आ गई, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये Yes, मैं sir. सिर्फ बता रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली आप यूज कर सकते हो। मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बस बहुत छोटी चीजें, माइनर चीजें बता रहा हूँ, बेसिक से बेसिक चीजें। ये सबको पता होना जरूरी है। किसी ने पूछा आई नीड अ डेट राइट नाउ, आई नीड अ टाइम राइट नाउ, क्या है, कोई बता सकता है मुझे? आपके पास कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे मेरे पास टाइम के लिए तो ये फॉर्मूला है, बट आई नीड अ बोथ डेट एंड टाइम। सो आप क्या यूज कर सकते हैं, नाउ। नाउ में क्या होगा, आपको डेट दिखेगा। इफ आई प्रेस हियर टुडे, सो यू कैन सी दैट आपको डेट दिखेगा, राइट। नाउ गो टू द होम, और यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास एक पूरी की पूरी यहाँ पे नंबर्स फॉर्मेट है, राइट। अब नंबर्स फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए, टाइम चाहिए, गो टू द मोर सेटिंग। अगर आपको टाइम चाहिए, डेट के साथ टाइम चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे देखो कोई चीज है आपको डेट के साथ टाइम दिखा रहा है, यस आई हैव, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ जस्ट लेट्स सी, यहाँ पे मुझे टाइम दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, आपको एक एक चीज बताऊंगा कस्टमाइजेशन कैसे होता है, कब हमें डॉट यूज करना है, कब हमें माइनस यूज करना है, कब हमें कॉमा यूज करना है, हैश यूज करना है, मिलियंस में चाहिए, डॉलर्स में चाहिए। सो यू कैन कस्टमाइज योर ओन फॉर्मेट्स हियर। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है यहाँ पे? मैं अभी फॉर्मेट सेल पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मेट सेल पे अभी काम नहीं करना है, हमें बेसिक से बेसिक चीजें सीखनी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई नीड टू डिलीट दिस वन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नंबर सीरीज हियर। एक हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, मंथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये मेरे को मंथ कुछ सही सा नहीं लग रहा, अकॉर्डिंग टू डेट मंथ निकालते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि हमारा समझ में आए, ठीक है। तो ये मैं मंथ यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और आप लोगों को कुछ यहाँ पे एक मंथ निकालने का तरीका बताता हूँ। हमने कई तरीके सीखे, जनवरी फरवरी मंथ हम ड्रैग कर सकते हैं, सीरीज से डाल सकते हैं, बट एक और चूज हमारे पास फंक्शन है चूज करके, ठीक है। चूज फंक्शन क्या काम करता है वो मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेसिक चीजें आइडिया हो जाए। लेट्स गो टू दी हियर and let's choose where is choose function. So let me just go, so you can see that कि मेरे पास पूरा का पूरा भंडार पड़ा हुआ है एक्सेल फंक्शन का, और एक्सेल फंक्शन देयर इज अ नो एंड। और जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसको, तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। आज भी मैं भी कहता हूँ कि मुझे नहीं आती, मैं भी आज चीजें सीख रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो जैसे देव ने आप लोगों को बोला था कि चीजों को सीखते रहिए, और जितना चीजें सीखेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि राइट नाउ डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस इस कंपनी में, हर कंपनी में बहुत ही रिक्वायर्ड है। सो यू कैन सी दैट कि आई हैव अ चूज फंक्शन हियर, और यहाँ पे चूज फंक्शन में कुछ चीजें डिफाइन की है। मैं इस चीजों को मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा,
मैं आपको बताता हूँ द फंक्शन व्हाट डज इट डू. The functions picks from a list of options based upon an index value given to by the users. Okay? जो यूजर डिफाइन करता है पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स वैल्यू के डिपेंड, इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग वो दिखाता है. अब जैसे मैं आप लोगों को पेंट में आके एक चीजें बताता हूँ. यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए. इंडेक्स सबको पता है इंडेक्स वैल्यू क्या होता है. सिंटेक्स हमेशा समझने की जरूरत है. कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे यूज होगा. यूज हमें कैसे करना है, पहले सिंटेक्स आप समझो. चूज में हमें दिख रहा है इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर का मतलब होता है वैल्यू, एनी वैल्यू. ठीक है, पोजीशन, यू कैन से दैट पोजीशन और वैल्यू और कुछ भी हो. ठीक है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं कि अगर मेरे पास 1 इंडेक्स है तो मैं इसकी जगह पे चाहता हूं AI लिखा हुआ. अगर 2 है तो वहां पे लिखा हुआ है C, और 3 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है Z. सो यू नो दैट कि हमारे पास पोजीशन ऑलरेडी है, बट हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं उस पोजीशन को. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू वी आर चूजिंग, जो आप डिफाइन कर रहे हो, वट एवर यू आर डिफाइनिंग दैट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट जो डिफाइन कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन उठाएगा. जैसे 1 पे आपने जो डिफाइन किया वो 1 पे ए ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आपने डिफाइन कर चुके हो उसकी पोजीशन. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं और चीजें समझ में आएगी. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर है. एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस, नो? Yes, yes. Yes, नाउ यहाँ पे मैं एक चूज फंक्शन डाल रहा हूँ. अब इंडेक्स नंबर मतलब कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस सेल. ओके, वैल्यू 1 क्या होगा? ये मेरा जनवरी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जनवरी डिफाइन कर दिया. वैल्यू 2 की पोजीशन पे क्या होना चाहिए? अगर 2 आए तो जो आप डिफाइन करोगे वही आएगा. अगर मैं यहाँ पे दिसंबर डिफाइन कर रहा हूँ तो दिसंबर ही आएगा सेकेंड पोजीशन पे. राइट, अगर मैं यहाँ पे दिसंबर शो कर रहा हूँ तो दिसंबर ही आएगा, या मैं यहाँ पे राहुल दिखा रहा हूँ तो राहुल ही आएगा. राइट, और मैं थर्ड पोजीशन के लिए जो डिफाइन करूंगा, जैसे मैंने थर्ड पोजीशन के लिए टाइगर डिफाइन किया तो टाइगर ही आएगा थर्ड पोजीशन. ओके, अगर मैं फिफ्थ फोर्थ पोजीशन के लिए जो डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब आप जो डिफाइन करोगे वैल्यू के अकॉर्डिंग या इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, यू आर जस्ट डिफाइनिंग द वैल्यूज. और एक बात याद रखना कि जो भी आप whenever you are just applying any function, so whenever you are just giving your own text or anything, आप अपनी चीजें डिफाइन करते हो तो हमेशा डबल कोट में लिखना. ठीक है, इज दैट क्लियर? कभी भी फंक्शन के अंदर हमें ऐसे ही लिखना होता है. राइट, क्लियर है सबको? अब मैं फोर्थ पोजीशन के लिए यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ कि फोर्थ पोजीशन क्या होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फोर्थ पोजीशन के लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ. चलो फटाफट इसको खत्म कर देते हैं. यहाँ पे मैं ए डिफाइन कर देता हूँ, बी डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सी डिफाइन कर देता हूँ, फिर डी डिफाइन कर देता हूँ. राइट, फिर मैं ई डिफाइन कर देता हूँ. सो हाउ मेनी पोजीशन आई हैव राइट नाउ? 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ 4 मोर. ठीक है, मैं कुछ भी रैंडमली यहाँ पे डाल रहा हूँ. 2 more Q and D. So I need to define in double quote. So ये मेरे टेक्स्ट है. Now hit enter. So you can see that कि 1 पोजीशन पे क्या है? जनवरी. ठीक है, तो जनवरी सबको दिख रहा है. जनवरी है मेरा फर्स्ट पोजीशन. Now let's drag this one. तो ये देखो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू आपका जो पोजीशन डिफाइन था उसके अकॉर्डिंग पोजीशन पे उठा लिया. अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूं तो क्या आएगा? कैन एनीबडी टेल मी? 12 लिखूं तो क्या आएगा यहाँ पे पोजीशन पे? कोई भी बता सकता है मुझे? P. 12 लिखूंगा तो क्या आएगा? P. ओके, लेट्स राइट डाउन हियर 12.
So you can see that कि मेरा position already defined है. If I write it down here 13, तो 13 पे क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे 13 पे क्या आएगा? किसी को आइडिया 13 पे क्या आना चाहिए? सर कुछ भी डिफाइन नहीं है 13 पे, इसलिए कुछ नहीं आएगा। तो हैश वैल्यू आ रहा है, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी बंदा या कोई भी anyone, like the people are entering any number beyond the 12 or above the 12, so यहाँ पे शो कर दे कि क्या शो कर दे? incorrect number you are entering या enter incorrect. ओके, एंटर इनकरेक्ट करके, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज PLEASE, प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 12. ओके, आई हैव दिस, आई वांट टू प्रिंट दिस वन. यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर यहाँ पे हैश वैल्यू आता है तो इसका मतलब वहां पे एक एरर है, और एरर की जगह हमें क्या प्रिंट करना है? प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 12, और यू कैन से दैट यू आर एंटरिंग द रॉन्ग नंबर. कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो अपनी तरफ से. यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? अब मैं कैसे करूंगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. एक हमारे पास फंक्शन होता है, इसी के आगे मैं यूज करूंगा इफ एरर करके. वैल्यू मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है जो कि चूज फंक्शन में ऑलरेडी डिफाइन है. मैं लास्ट में जाता हूँ वैल्यू इफ एरर. अगर एरर आता है तो लास्ट में मेरे को क्या दिखाने का है? आप सेल सिलेक्ट कर लो ये वाला, दैट्स इट, और एंटर कर दो. तो ये देखो क्या आ रहा है. अब आ रहा है सही? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ना डिफाइन करके मैं सेल नहीं लेता हूँ, मैं इसको एज अ टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. कंट्रोल V, सॉरी, लेट मी जस्ट टेक दिस वन. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप कभी भी just give me a check. Just give me a second. Okay, so let me just put the text here, control V, and then close the bracket and hit enter. Now let's delete this one. तो now you can see that कि मेरे पास यहाँ पे एक एरर से मैंने क्या किया, उस एरर को हटा के उस जगह पे मैंने क्या एंटर करवा दिया? प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 12. ये सबको क्लियर है यहाँ तक कि मैं कैसे एरर को हटा के अपना चीजें प्रिंट करवा रहा हूँ? अब मैं जैसे यहाँ पे 15 डालूं तो क्या दिखाएगा? हैश एरर, बिकॉज मैंने ये अभी तक ड्रैग नहीं किया है फॉर्मूला. आप ड्रैग करोगे तो आपको ये चीजें आएगी. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट एंटरिंग बिटवीन 1 to 12, सो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास चूज पोजीशन में सिर्फ 12th पोजीशन तक ही डिफाइंड है. अगर मैं 13वां पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं 13वां डिसीजन उत्तरी. नाउ लेट्स एंटर इट. यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूं तो क्या आएगा आंसर? उत्तरी. यू ट्राई, ठीक है. नाउ लेट्स ड्रैग दिस वन टू ऑल द सेल्स एंड यू कैन से दैट कि आप कभी भी यहाँ पे नंबर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिगर चेंज हो जाएगा. राइट? क्लियर? यस सर. क्लियर है? मतलब नहीं चीज समझ में आ रही है तो पूछो आप मेरे से. ये छोटा फंक्शन है, चूज फंक्शन इज अ वेरी स्मॉल फंक्शन. मैं इसके अंदर बस 2 फंक्शन यूज किया हूँ. एक तो मैं चूज यूज किया हूँ और एक इफ एरर यूज किया हूँ. ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. फॉर्मेट करने के लिए आपको सेम, आपको यहाँ पे प्रेस करना है, देन शिफ्ट एंड देन कंट्रोल, देन यू हैव टू जस्ट प्रेस कंट्रोल R. अगर आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी प्रेस कर दो और कंट्रोल A प्रेस कर दो, तो आपका जितना डेटा होगा वो डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर?
Yes. सर अब यहाँ पे मेरे पास पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने क्या बोला? देखो कई तरीके हैं, डेटा मेरा जितना है यहाँ पे मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट लेट मी जस्ट एडजस्ट द कॉलम। तो एडजस्ट करने का आपके पास तरीका है, या तो आप पूरा सेल सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कोई भी रोज पे जाके डबल क्लिक कर दो। इसके और भी तरीके होते हैं, ऑल्ट OCA होता है, शायद देव ने आप लोगों को बताया है सारा चीज, आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो हमारे पास होता है क्या, ऑल्ट OCA। आपको डेटा सिलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू डेटा द डेटा लाइक द रोज एंड द कॉलम विल एडजस्ट, ठीक है? तो मेरे पास डेटा एडजस्ट हो गया। नाउ मैं आप लोगों को अब डेटा यहाँ पे जो सेलेक्ट है इसमें से मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी बॉर्डर लगा देता हूँ। तो बॉर्डर लगाने के भी फॉर्मूले होते हैं, ऑल्ट HBA करके होता है, ऑल्ट OCA करके होता है, अलाइनमेंट करना है, ये सारी चीजें होती हैं। ये धीरे धीरे करते करते आप लोगों को भी, once you start with playing with the Excel, then you can learn, right? Now let me just फॉर्मेटिंग दिस वन। मैं सोचता हूँ कि इसको थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कलरिंग कर देता हूँ। आई डोंट नीड द सीरियल नंबर्स, तो मैं यहाँ से सीरियल नंबर आप चाहो तो हटा सकते हो, यहाँ से डिलीट कर दिया मैं। नाउ आई डोंट नीड दिस वन सीरियल नंबर, चलो ठीक है, मैं इस सीरियल नंबर को भी यहाँ से हटा देता हूँ। आई डोंट नीड दिस वन, यहाँ से फॉर्मूला मेरे पास हट गया। नाउ आई नीड अ मंथ, तो मेरे पास मंथ हमारे पास होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट कॉलम होता है, एक टेक्स्ट फंक्शन होता है। टेक्स्ट फंक्शन से क्या होता है, ठीक है, मैं उसमें 3 तरीके की पैरामीटर्स होते हैं। पहले मैं आप लोगों को टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। लेट मी जस्ट गो टू दी माई मॉड्यूल वाइज ट्रेनिंग्स एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द टेक्स्ट फंक्शन। सो इसके अंदर अगर होगा टेक्स्ट फंक्शंस तो मिल जाएगा, otherwise I will tell you from, can you see that, please let me know once आप लोगों को भी दिखे तो। SYD, ओके, ये रहा टेक्स्ट मिल गया मेरे को। टेक्स्ट में हमारे पास काफी तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, तो ये वाला टेक्स्ट नहीं है वो जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यहीं पे बताता हूँ हमारे पास क्या होता है टेक्स्ट। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फंक्शन लिखता हूँ, कन्वर्ट द टेक्स्ट स्पेसिफिक नंबर इन फॉर्मेट। तो हमारे पास क्या होता है कि एक वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सेलेक्ट एनी वैल्यू, डेट एंड फॉर्मेट। हमारे पास 3 तरीके के फॉर्मेट पैरामीटर्स होते हैं टेक्स्ट के अंदर। एक होता है हमारे पास फॉर स्मॉल मंथ, ठीक है, ये आपका जैसे जैन आता है, ठीक है, ये जैन करके ऐसे आएगा मंथ। इफ यू प्रेस YY, सो आपके पास आएगा 2025, जैसे हम लिखते हैं तो 25 आएगा। इफ यू प्रेस 4 times Y, सो आपके पास 2025 लिखा हुआ आएगा। इफ यू प्रेस 111 mm, सो आपके पास पूरा फुल मंथ लिखा हुआ आएगा, राइट? इफ यू प्रेस DD, सो आपके पास डेट आएगा। So these are the parameters we can pass like in text function. Like for example, let me just show you something. Text, and then you need to select the date, and then you have to just close that with, start with a double quote and then formatting. Like I need a month. So what you need to do? You need to press MMMM and then close the bracket. So you can see that कि मेरे पास 4M होगा तो full month आएगा, right? और अगर 2M भी होगा तो हमारे पास मंथ का जो नंबर होता है वो आएगा, ठीक है। और हमारे पास जो 3 नंबर होता है, 3M यूज करोगे। इफ यू प्रेस 3M, सो यू कैन सी दैट कि जुलाई मंथ आ रहा है। इफ यू लाइक राइट इट ऑन अ 4 month M, सो यू कैन सी दैट अ फुल मंथ, ओके। ये हमारा मंथ निकालने का तरीका है टेक्स्ट फंक्शन से, और ये मोस्टली हम कहते हैं कंपनी में हर जगह यूज होता है, हर जगह। मैं आप लोगों को एक वो भी दिखाऊंगा कि कैसे हम पाई चार्ट या चार्ट के अंदर जो टाइटल होता है वो ऑटोमेटिकली कैसे चेंज होगा, या कैसे डेट और मंथ चेंज होगा। वो भी सारी चीजें आएंगी अभी चीजें, बट बेसिक चीजें हम लोग को पता होना चाहिए,
जैसे मंथ निकाला मैंने, ईयर निकाला। यहाँ पे ईयर निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, कोई बता सकता मुझे? एनीवन वांट टू ट्राई? किसी को ट्राई करना है? 4 times y. 4 times y, राइट। तो हमें जो ईयर निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? Sir, यस प्लीज, कुछ पूछना है? no, no. Okay, fine. So now what I'm just trying to find out here, I'm just trying to find out the year from the date. So I have the date here. So what you need to do, you need to use text function, then you need to select the value. Just understand the first syntax. So syntax is that you need to select value. So value is already selected. Then you need to put the comma, and the formatting text, you need to pass the parameter for the year. So for the year, what you need to do, you need to just pass the parameter and then close the bracket and hit enter. So what I will get, you will get the 2025. Let me change here. Let me just put here 24, 25, and then let's go on. Got it? मेरा year change हो रहा है यहाँ पे. I don't want to see the green line. I hate green lines. मेरे को green line पसंद नहीं है. तो क्या करना है? Just go to the view tab. और आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो ग्रिड लाइन हटा दीजिए. आपको हेडिंग नहीं चाहिए, फॉर्मूला बार नहीं चाहिए तो फॉर्मूला बार, ये जो हमारा फॉर्मूला बार होता है उसको हटाना चाहते हैं आप, और उसको हटा दीजिए. आपको हेडिंग नहीं चाहिए, आप शीट से हेडिंग भी हटा दीजिए, फॉर्मूला बार भी हटा दीजिए. ठीक है? आप चाहते हो ये मेरे को कमांड बॉक्स भी ना देके, जस्ट रिमूव दिस वन. ऑटो हाइट, शो टैब्स हाइट, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, आपका सिर्फ एक्सेल दिखेगा. ठीक है? क्लियर है ये सबको? Once you play with the Excel, then you can learn everything. आप एक बार जैसे खेलना शुरू करेंगे, आप जैसी चीजों को थोड़ा थोड़ा करना सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें कि इसमें होता क्या है, सेल क्या होता है, या हाउ टू ऐड और रोज. मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपना फेवरेट टैब भी क्रिएट कर सकते हैं. बट चीजें को पहले मैं समझा रहा हूँ, बेसिक चीजें हैं. यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? एनीवन लाइक डाउट हियर? किसी का भी डाउट हो प्लीज आप पूछ सकते हो. अगर कोई भी कहीं पे भी बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, नो मैटर्स वेयर यू आर सिटिंग, आई डोंट केयर. आई नीड योर कि आपके क्वेश्चन क्या चल रहा है दिमाग के अंदर. किसी के अंदर ऐसा कुछ दिमाग के अंदर क्वेश्चन चल रहा है कि मैं इस डेटा के अंदर और क्या कर सकता हूँ या क्या बना सकता हूँ मैं? देखो मैंने छोटी चीज शुरुआत की थी यहाँ से, बट मैंने आप लोगों को कितनी चीजें बता दी यहाँ तक आने में. यू थिंक अबाउट कि मेरे पास एक छोटा डेटा है. अगर आपको कोई छोटा डेटा कंपनी में देता है and you want to find some like logical things, आपको logical dashboard बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? You have to read the data first. यहाँ पे क्या मैं ऐड कर सकता हूँ या क्या डिलीट कर सकता हूँ, you have to think about it, right? Now let's find the date here. डेट फाइंड करने के लिए मेरे को क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए? मैं यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट फंक्शन. सो टेक्स्ट फंक्शन का यही यूज होता है कि आप डेट, मंथ, ईयर वगैरह सब चीजें फाइंड कर सकते हो. राइट? क्लियर? तो यहाँ पे मैं dd लिख देता हूँ एंड नाउ क्लोज दिस वन एंड हिट एंटर. सो यू विल गेट द डेट हियर. नाउ इसको बॉर्डर लगाना है तो क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट HBA प्रेस करते ही मेरा बॉर्डर लग गया. ये शॉर्टकट में अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हैं. आप देखो कि आपके लैपटॉप में एक ऑल्ट करके एक बटन है, उसको प्रेस करो. सब कोई प्रेस कर सकता है. वंस यू प्रेस लेट मी नो. एक बार प्रेस करो. एक बार प्रेस करने पे देखो क्या आता है. ऊपर देखो एक ब्लैक कलर के टेक्स्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा. F फॉर फाइल, H फॉर होम, N फॉर रिप्रेजेंट, इंसर्ट, P फॉर प्रेजेंट, page layout, M for formula, A for data, R for review, W for view, and Y for help. Can you see that? Please confirm me, everyone. Yes, sir. Alt press करने पे आप लोगों को कुछ शॉर्टकट आ रहा है?
Yes, no? Rahul, Yes, sir. Nishita, Arpit, Priyashi, Yes, No, sir. sir. प्लीज मेरे को सबकी आवाज चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि लंच Yes, वंच पे sir. चले, खाना वाना खाने चले गए। ये शेडी, सार्थक, स्वास्तिक, विवेक, यशिका, प्लीज कंफर्म मी। मैं बहुत ही जरूरी चीज बताने जा रहा हूं मैं। अगर आप प्रेस ऑल्ट करते हैं तो आपको क्या दिखता है? शॉर्टकट की दिखता है टैब्स पे जाने का। शॉर्टकट की दिखता है आपको क्विक एक्सेस टूल बार पे जाने का। Yes, sir. Perform हो रहा है. राइट, एंड नाउ आई वांट टू गो फॉर होम पेज। अगर मैं होम पे जाना चाहता हूँ, होम टैब पे, तो जस्ट प्रेस एच प्रेस करो। आप सब कोई एच प्रेस करो, जस्ट प्रेस एच प्रेस करने के बाद आप देखो मैंने क्या दबाया था बॉर्डर के लिए, ऑल्ट एच बी दबाओ। बी दबाने के बाद मैंने क्या प्रेस किया था? ए फॉर ऑल बॉर्डर्स। So this is your shortcut function for to creating the to making the borders for your data. No borders for and you can see that कि line मुझे दिख रहा है हर एक के नीचे, Yes, sir. right? तो मैं शॉर्टकट फंक्शन में यहीं से बता रहा हूं आप लोगों को, मैं कहीं से भी कोई चीज बाहर से नहीं बता रहा हूं। मैंने बॉर्डर के लिए क्या यूज किया? ऑल्ट, फिर एच, फिर बी, फिर ए, राइट? इफ यू नीड आउटसाइड बॉर्डर, इफ यू नीड थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो क्या करना होगा? आप आराम से सिलेक्ट कीजिए डेटा को। अगर मैं इसमें कलर चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू कलर इट, तो व्हाट यू नीड टू प्रेस? यू नीड टू प्रेस ऑल्ट एच देन हाईलाइट। You need to just go to the edge. You can see that I have the color functions here, and no fill, just click on N. If you need a more color, just press M, right? So this is your shortcut function. Any doubt? किसी को भी शॉर्टकट फंक्शन सीखना है तो पहले चीजें यहां से हम शुरू करेंगे, होम टैब से, राइट? आपको कैसे पता कंट्रोल एक्स से कट होता है? कैसे पता कंट्रोल सी से कट होता है, कॉपी होता है? या कैसे पता हमें फॉर्मेटिंग करना हो तो क्या करना होता है? फॉर्मेटिंग का सबको पता है कैसे करते हैं? मेरे को अगर ये सीरियल नंबर का जो फॉर्मेट है वो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी वही फॉर्मेट हो जाए, तो क्या करूंगा? इस पे जाऊंगा, इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा, और मैं जहां पे डेटा यही सेम कलर करना चाहता हूँ, टेक्सटिंग करना चाहता हूँ, मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा और क्या प्रेस करूंगा? ऑल्ट ई एस टी। यू कैन सी दैट फॉर्मेट में यहाँ पे टी है। ये पेस्ट स्पेशल का फॉर्मूला है, या पेस्ट स्पेशल का यू कैन से दैट कि ये मेरा शॉर्टकट की है। मैं आपको ये चीजें, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, पर बहुत ही काम की है ये सारी चीजें, बहुत ये यूज होती हैं, डेली बेसिस पे यूज होती है। अब मैं कहता हूँ मैं रोज कम से कम अपनी उंगलियों को कम से कम यूज करता हूँ रोज, फॉर्मेट्स में, बॉर्डर्स में, फंक्शन एंड फॉर्मूला में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बट उसके लिए भी आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए यार। चलो ठीक है, दिस इज दी लाइक यू कैन सी दैट कि देखो मेरा फॉर्मेट होते ही उसी फॉर्मेट में आ गया, राइट? क्लियर? यस सर। नो? क्या ये सबको पता था? इतनी छोटी सी चीजें सबको पता था कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं डेटा में कुछ ऐसा चीज? नहीं सर। ओके, तो अभी मतलब आपको क्लासेस में इतना चीजें, क्या क्या चीजें आज की, मतलब क्या अच्छा लगा, मतलब क्या चीजें व्हाट यू लाइक? तो आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, या आप लोगों ने देखा ही नहीं था, या आप लोग सीखना मतलब आप लोगों ने देखा था बट वो कैसे करते हैं वो चीजें, कुछ पता चला? एनी आइडिया अबाउट राहुल और एनीवन वांट टू से एनीथिंग? इसमें एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे मेरा कुछ साल का एक्सपीरियंस है एक्सेल यूज करने का, तो मैं पहले यूज करता था माउस के थ्रू, लेकिन इतना इतना जो माने शॉर्टकट होता है
या ऐसे किया जा सकता है, ये नहीं पता था, ये अभी पता चल रहा है। सीरियल नंबर का डॉलर वाला जो सिंबल डाल के आपने किया, वो मेरे लिए नया था। ओके, प्लस अभी तो ये चीजें शुरू हुई हैं, डॉलर के तो बहुत यूज होने वाले हैं। तो इसीलिए ये अभी तो बहुत कुछ शॉर्टकट सब नया है। लेकिन माउस यूज करके मैं पहले बहुत कुछ किया हूँ काम। ओके, मैक्सिमम मैं 90% माउस तो यूज करता ही नहीं हूँ। कहीं पे अगर मुझे डेटा कहीं पे ट्रैक करना पड़े तो मैं यूज करता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग। जस्ट मूविंग इफ आई एम मूविंग कर्सर, just use control. Okay, whenever you are moving end to end, just control, just press control and just hit right, up, down arrow, just play with the Excel. Once you play with the Excel na, you know about ki what is the shortcut. Every time अगर आपको कभी भी कोई चीज सेलेक्ट करना है, just use shift space bar से मैंने सेलेक्ट किया। if you want to delete control minus, just delete it, control minus control plus से insert करो, delete करो, right। अब मेरे पास यार यहाँ पे तो लगता है कुछ चीजें, हेडिंग्स नहीं दिख रहा, फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा, ग्रिड लाइन नहीं दिख रही, whatever, just do it। मैं ऐसी चीजें आपको धीरे धीरे टैब्स के बारे में छोटी छोटी चीजें बताते जाऊंगा, ठीक है। ओके, आप लोगों को शॉर्टकट की सीखना था, आपको शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है यहीं से करो, ऑल्ट प्रेस करो। बट आपको पता होना चाहिए कि होम टैब में क्या है। और होम टैब के बारे में अगर पता नहीं है, कमांड्स के बारे में पता नहीं है, तो शॉर्टकट की यूज नहीं कर सकते, राइट? एम आई करेक्ट? यस यस, सर। नो, Yes. Yes, sir. यस यस सर। राइट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ शीट हियर, नाउ आई वांट टू डिलीट, बट डिलीट करने के लिए भी मुझे पता होना चाहिए कि यार ये होम टैब में है और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे है। और डिलीट में, डिलीट शीट के लिए एस आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एस के नीचे लाइन बना हुआ है, कैन यू सी दैट? Yes, yes. तो पता होना चाहिए ना कि मैं इसको डिलीट करना है, तो क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट एच डी एस, एंटर। यार बड़ी जल्दी से कर दिया मैंने, तो पता भी नहीं चला, डिलीट हो गया, मेरे को माउस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से आप लर्न करो इस किसी भी चीज को, छोटे छोटे फंक्शंस को, ठीक है। अब कोई चीज इंसर्ट करना है, या हमें फॉर्मेटिंग करनी है, या कोई चीज क्लियर करना है, या ऑटो सम करना है। देखो मैं 2003 का एक सॉफ्टवेयर का एक फिल्टर आउट बताता हूँ, आप लोगों को क्या क्या पता है फिल्टर कैसे होता है। जैसे मेरे पास डेटा है, ये डेटा मेरे पास है, मेरे पास यहाँ पे एक फिल्टर ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है फिल्टर करने का, किसी को दूसरा तरीका पता है फिल्टर? यही पता है, हाँ बस यही पता है, ऐसे ही फिल्टर लगाते हैं। ओके, आप देखो एक और फिल्टर हमारे पास लगाने का तरीका है, ये कहीं पे नहीं मिलेगा। अब मैं बताता हूँ, ऑल्ट एक प्रेस, आपको जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लो डेटा, ठीक है, जस्ट सेलेक्ट द डेटा। आप कंट्रोल शिफ्ट करके मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया। नाउ आई वांट टू अप्लाई द फिल्टर। इस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट डी एफ एफ करके प्रेस करेंगे। ये 2003 के एक्सेल का फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब मैं यूज करता था, जब मैंने शुरुआत किया था 2003 वाले एक्सेल पे, राइट। और फिर से वही अगर हटाना है तो क्या करूंगा, ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस कर दो, द फिल्टर विल रिमूव। अगेन लाना है तो ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस करो, यू विल गेट द फिल्टर, राइट। क्या प्रेस करना है, किसी को मालूम था इसके बारे में कि मैं अगर ये प्रेस करूंगा फिल्टर लगाने के लिए तो मेरे पास शॉर्टकट की फंक्शन में क्यों जाऊं, यहाँ पे मैं क्यों करूं, यहाँ पे ऐसा क्यों, मतलब मैं बार बार माउस थोड़ी ना चलाना चाहता हूँ यार। आप लोग डेटा एनालिसिस हो, डेटा एनालिसिस का क्या होता है, डेटा एनालिसिस का काम होता है कि वो उंगलियों पे बातें होती है, ठीक है, माउस कब तक छेड़ते रहोगे। सो डोंट यूज माउस, आई एम जस्ट, आप माउस यूज करो कोई बात नहीं, बट माउस से क्या होगा, आप लर्न करोगे पहले, ठीक है। आप चीजों को जानो माउस से पहले। मैं ये नहीं कह रहा माउस मत यूज करो, माउस मैंने कई लोगों को देखा, दे आर यूजिंग माउस, माय बॉस इज यूजिंग माउस, राइट, but they don't know about the shortcut function, but they can apply the functions also, they know about the function,
राइट, हमें कहाँ पे परसेंटेज देना है, कहाँ कमीशन देना है, कहाँ मार्जिन परसेंटेज देना है। ही नोज अबाउट द फॉर्मूला बट ही डोंट नो, ही नीड अ डेटा एनालिसिस। मुझे एक डेटा एनालिसिस चाहिए जो बंदा, अगर मैं यहाँ पे नंबर डालूं तो ऑटोमेटिकली मेरा मार्जिन यहाँ पे आ जाए। कैसे आएगा? फिल्टर करेगा, फटाफट फिल्टर करना आना चाहिए, मेरे पास पता होगा तब ना। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, राइट। तो फिल्टर करने का ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, एक ये भी ऑप्शन है, प्रेस ऑल्ट टी एफ एफ, दैट्स इट। ओके, गॉट इट, क्लियर? यस यस। सर। अभी तो बहुत मजा आने वाला है अब इसके अंदर। Yes. अभी तो बहुत छोटी सी चीज यूज किया है मैंने। अगर मैं इस डेटा का सुमराइजेशंस बनाना चाहूँ तो मैं सुमराइजेशंस भी बना सकता हूँ, जो कि आपको देव ने ऑलरेडी बता रखा है। आपको जस्ट प्रेस करना होता है, कहीं पे भी प्रेस कर लो एंड प्रेस कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होगा, यू कैन क्रिएट द टेबल इनटू द समराइजेशन फॉर्म। टेबल डिजाइन आप कर सकते हो, समराइजेशन टेबल कर सकते हो, राइट। सो यू कैन डू दैट। एंड इसके अंदर मैं इंसर्ट स्लाइसर करूं, मैं आप लोगों को बस ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, इसके बारे में पूरा चीज नहीं बता रहा हूँ मैं अभी कुछ भी। नाउ इफ आई सेलेक्ट हियर, अब यहाँ पे देखो मैं 24 सिलेक्ट करता हूँ तो डेटा विल ऑटोमेटिकली चेंज। इफ आई सेलेक्ट बोथ डेटा, सो दिस विल शो यू, राइट। यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा आने लगा, सारा चीज जो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग डेटा मूव हो रहा है। ओके, स्लाइसर से मेरा डेटा मूव हो रहा है, मतलब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मेरा स्लाइसर ही काम कर देगा। मैं क्यों करूं यहाँ से फिल्टर विल्टर सब, मेरे को नहीं चाहिए फिल्टर बाबा। आई डोंट नीड एनीथिंग। क्या मेरे को जरूरत है इसकी? क्या लगता है इसकी जरूरत है? ये ऑटोमेटिकली मेरा क्रिएट टेबल करने पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, मेरे को जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों को, फिल्टर विल्टर यहाँ से मैं क्यों करूँ। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेटा है। मैं एक बटन बनाऊंगा ऊपर, एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे करता हूँ, इंसर्ट, लेट मी जस्ट इंसर्ट हियर मोर कॉलम, इंसर्ट। मैं एक एक करके क्यों इंसर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस दबा दो, जल्दी से हो जाएगा काम। और मैं इस डेटा को यहाँ पे मूव करके, अब देखो स्लाइसर में यहाँ पे कॉलम्स करके आ रहा है, कॉलम्स करके आ रहा है। मेरे पास कितना डेटा है यहाँ पे, 2 4 6 8 12 कुछ डेटा है अराउंड, तो मैं 12 कॉलम्स पे इसको चेंज कर देता हूँ। नाउ इफ आई गो टू दी हियर एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे मैं डेटा कर दिया, बट मेरे को पूरा डेटा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डेटा दिखने लगा। लेट मी जस्ट गो टू द व्यू ऑप्शन। आई डोंट नीड हेडिंग वेडिंग, सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। हाइट, ऑटो हाइट कर दिया। नाउ जस्ट टेक दिस डेटा, कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट हियर। ठीक है, अब मैं ऑल्ट ओ ये कर देता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर्मूला पता है तो कर सकते हो। यहाँ पे 24 क्लिक करूंगा तो देखो 24 का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस होंगे। जो जो सिलेक्शन रहेगा वो, जैसे कि मेरे पास 35 31 28 27 26 27 डेटा चेंज हो रहा है। क्यों गाइस? सर पर फिल्टर में एक फायदा ये है कि प्रोडक्ट लिस्ट में अगर हम फिल्टर को यूज करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, तो उसमें हाँ जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं वो आ जाएंगे। हाँ, वो भी आ जाएंगे, वो मैं स्लाइसर से वो भी ला सकता हूँ। कैसे करेंगे? हाँ कैसे? ये अभी जो स्लाइस आप यूज कर रहे हैं इसमें वो चीज कैसे होगा? फिल्टर में तो हो जाएगा। चलो ठीक है, स्लाइसर में यूज करके दिखाऊं। स्लाइसर में भी यूज हो जाएगा, वो बहुत इजी है। स्लाइसर में इजी डालने के लिए आपको बस यहाँ पे डेटा पे क्लिक किया, टेबल डिजाइन पे गया, और इसके अंदर एक इंसर्ट स्लाइसर में एक मैं डालता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट, एंड ओके करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। नाउ आई नीड अ 3, नाउ आई नीड अ 3 ब्लॉक। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे विजिबल हो। ठीक है, मैं ईयर को, जो ऊपर ईयर लिखा हुआ आ रहा है, इसकी थोड़ी मैं सेटिंग कर देता हूँ। ईयर मैं नहीं देखना चाहता तो जस्ट गो टू द स्लाइसर, डिस्प्ले हेडर, रिमूव इट, आई डोंट नीड। ये मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, मैं आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होता है डायनेमिकली, राइट। अब नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है,
बट मैं इतना बड़ा नहीं देखना चाहता हूँ। इसकी हाइट, साइज, वेट वगैरह जो भी है, ब्ला ब्ला, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। नाउ आई वांट टू सी कि यहाँ पे मेरे पास, let me just go to this one, I make it one column here, I don't need this one, बहुत ही बड़ा दिख रहा है इसकी वजह से, मुझे छोटा करना चाहिए, और यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है, ये सही है, ये चलेगा। चलेगा चलेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने रेफ्रिजरेटर सिलेक्ट किया, तो रेफ्रिजरेटर में 2029 में डेटा आया, 2032 में डेटा आया, 35 में डेटा आया, तो आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है। इफ यू वांट टू ग्राफ ऐड करना चाहते हो ग्राफ, तो इस डेटा को उठा के ग्राफ भी ऐड कर सकते हो। मेरे को डेटा नहीं देखना, मुझे ग्राफ देखना है। कोई डेटा दिखाता है कंपनी में कि ग्राफ दिखाता है? क्या दिखाता है? Majority graph. मेजोरिटी ग्राफ। सो दिस इज माय डेटा, दिस इज नॉट द ग्राफ। अगर डेटा विजुअलाइजेशन करना है तो यू नीड टू जस्ट कम टू द लास्ट। हमारा जो विजुअलाइजेशंस होता है, डेटा विजुअलाइजेशंस, यू हैव टू जस्ट शो देम, बट बिफोर दैट यू नीड टू डी द कैलकुलेशन बिहाइंड। आपके पीछे जो कैलकुलेशन करना होगा वो पीछे करना होता है, बट डेटा कैसे विजुअलाइजेशन दिखाना है वो दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। बट हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही होना चाहिए पीछे पहले तो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये सही है, ठीक है? ठीक है सर। So I hope done for the today. So if you need this file, then I will send it to you, everyone. So just give me a second. I'm just saving this file. This is our Excel day 3, right? Excel day 3. आप लोग मेरा स्क्रीन देखते रहना बस। Now, if I just want to remove, just go to the filter out and just remove it. Okay, now just save this one. Okay, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है इसको, एक्सेल डे 3 के नाम से सेव कर देता हूँ। नाउ गो टू द डेस्कटॉप, एक्सेल डे 3, राइट, एंड क्लिक ऑन सेव। So I'm sending to Dev. Dev, I'm sending this file to you. Okay. Dev, are you there? I think वो किसी और मीटिंग में होगा। No worries guys. मैं एक काम करता हूँ, if like I don't have your email IDs, can anybody like just send me the email ID? नहीं sorry, email ID का I think हमारे पास एक्सेल शीट था, right? कोई मुझे यहाँ पे चैट पे डाल सकता है ईमेल आईडी अपनी, कोई भी? वो वाली जो एक्सेल गूगल शीट के फाइल का लिंक है जो कोई भी भेज सकता है, कैन यू जस्ट ड्रॉप हियर? कोई डाल सकता है? यस, थैंक यू अर्पित। नाउ टेक आउट दिस लिंक फ्रॉम हियर, कंट्रोल सी कॉपी। एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ उसको। आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग हियर न्यू शीट। जैसे देखो यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करते हैं, आई क्लिक ऑन दिस शीट टू इंपोर्ट। ओके, नाउ आई गो टू द अपलोड सेक्शन, ब्राउज। नाउ वेयर आई सेव दिस वन, आई सेव्ड हियर। नाउ ओपन दिस वन। ओके, insert a new sheet and import the data. yes, यहाँ पे गूगल शीट का फॉर्मूला एक्चुअली अलग दिखता है, ठीक है? यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन होती है, सब चीजें होती है, तो यहाँ की यू कैन सी दैट। आप यहाँ से डेटा उठा सकते हो, आपको डाउनलोड करना होगा और यहाँ से डेटा करना होगा। सबको मिल गया यहाँ पे शीट? सबको मिल जाएगा शीट आई थिंक। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही, जस्ट वॉच द वीडियो। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। आई होप यू एंजॉयड। आप लोगों को मजा आया आज की क्लास में? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज टीचिंग, लर्निंग एंड गाइडेंस। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ओके जी सर, सर, thank you very much. ओके, सो आई होप यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। बेसिक्स जो था हमारा वो क्लियर हो गया होगा, राइट?
अब इससे भी बहुत ज्यादा बेसिक्स होता है, बट वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जब ये शुरू करेंगे ना तो खुद चीजें वो सीख जाओगे आप लोग। Okay, so thank you guys. I have another meeting with clients, so we catch tomorrow. So have a good night and good day and Shubhratri. Enjoy. Okay. Thank So you and good night, sir. thank you. Thank you so much. Thank you. So I'm leaving. You guys also, you can leave and have a dinner and good day and enjoy.